Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. So, today we are going to start chapter number second of our Magic Words English Language of class 4th. So, today we will begin the chapter number 2 nouns. So, in this chapter, we will learn about what is noun, kinds of noun, compound nouns, possessive nouns. First of all, start up. Read the following paragraph carefully. Underline the naming words or nouns that you have already learned in your previous classes. तो पैराग्राफ दिया गया है उसमें आपको नाउन्स एंड नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. द हॉलीडेज, दशहरा, रिया, रेली रेलवे स्टेशन, मदर, फादर, ट्रेन, विलेज, पीपल, ट्रीज, एनिमल्स एंड हम नहीं है इसमें. आफ्टर क्रॉसिंग मैनी टाउन्स एंड विलेज, टाउन्स, विलेजेस, train, Meerut City railway station, train, village. So done for you students. Next, names of people, places, animal or things are called naming words और nouns. लोगों के नाम, जगह, जानवरों, चीजों के नाम को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं या nouns कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टीचर, डॉक्टर, ज्ञान, फ्रेंड, मदर आर द नेम्स ऑफ पीपल. School, field, Mumbai, country, and temple are the names of places. Cat, dog, horse, dolphin, and insect are the names of animals. Table, book, pen, chair, and telephone are the names of things. Now, learn about kinds of noun. There are 5 kinds of noun. First one is common noun, second is proper noun, third is collective noun, fourth is material noun, last is abstract noun. First one is common noun. Common noun is the name common to every person, place or thing of the same class kind of group. जब हम किसी तरह के पर्सन, चीज या जगह के लिए जो सेम क्लास की, सेम काइंड या सेम ग्रुप की हो, नाम लेते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज गुड डांसर, माई फादर एंड मदर आर टेकिंग लंच. अब इन सेंटेंसेस में जो है कॉमन नेम्स जो है पर्सन और थिंग्स के हैं, सेम काइंड के हैं. तो दीज आर कॉमन नाउन्स. ब्रदर सेम काइंड है, फादर और मदर डांसर जो है कॉमन है. यहाँ पे पर्टिकुलर किसका नाम नहीं दिया हुआ. प्रॉपर नाउन. Proper noun is the name of particular person, place or thing. Proper means one's own. A proper noun always begin with capital letter. Proper noun होता है जब हम किसी स्पेशल पर्सन, स्पेशल प्लेस, स्पेशल एनिमल या थिंग का नाम लेते हैं. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होती है. शी इज गुड प्लेयर, सचिन इज ए गुड प्लेयर, द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग. अब यहाँ पर प्लेस का नाम लिया गया है बट पर्टिकुलर नेम है उसका ताजमहल लगाया है और कैपिटल रखा है इसका नाम. द नेम्स ऑफ मंथ्स, रिवर, माउंटेन, ओशन, मोन्यूमेंट, स्पेशल डेज आर अब सब प्रॉपर नाउन होते हैं. नेक्स्ट वन इज ए कलेक्टिव नाउन. A collective noun is the name given to a group of person, things or animal as a single unit. Collective noun होता है जब हम ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग्स को एज ए सिंगल यूनिट काउंट करते हैं, कलेक्ट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, वर्ड क्राउड इज वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल. क्राउड ग्रुप का नाम है बट वो किसका क्राउड होता है? पीपल का, ग्रुप ऑफ पीपल का. लिस्ट ऑफ सम कलेक्टिव नाउन: ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ए कैरावान ऑफ कैमल, clutch of chicks, eggs, a pack of hounds, wolves, cards, a band of musicians, chain of island, litter of kittens and puppies, pride of lions and peacock. Flock of birds, sheep, a hive swarm of bees. Next है material noun. Material noun is the name given to a material or substance of which things are made. Material noun होता है उस material का name जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं. For example, wood is used for making furniture. तो wood क्या है? Material noun. My ring is made of gold. Gold क्या है? Material noun. नेक्स्ट है abstract noun.
And abstract noun is the name given to the some idea, quality, feeling, action which we can only think about or feel. For example, तो abstract noun होता है जब हम किसी आइडिया, इमोशन, क्वालिटी, फीलिंग को या एक्शन को सिर्फ फील करते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी वर्ड जो है उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट कोई चीज़ है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। So some of the important abstract nouns are arranged below under four heads. Feeling, joy, grief, quality, honesty, bravery, action, thief, laughter, state, childhood, boyhood. आर्ट एंड साइंस की जितनी भी ब्रांचेज है वो सब abstract noun है। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन्स। A noun that is made up of two or more words called compound noun. नाउन जो दो से अधिक शब्दों से बनता है नाउन होता है। कंपाउंड नाउन में फर्स्ट वर्ड जो होता है सेकंड वर्ड को डिस्क्राइब करता है। कंपाउंड नाउन में हैव मैनी कॉम्बिनेशन, सम ऑफ दीज आर एज फॉलो। नाउन प्लस नाउन, फॉर एग्जांपल फुटबॉल नाउन है, बॉल नाउन है, कंपाउंड करके फुटबॉल। फ्रेंड नाउन है, शिप नाउन है, कंबाइन करके फ्रेंडशिप। एडजेक्टिव और नाउन को कॉम्बिनेशन से कंपाउंड नाउन बनता है ब्लैक और ब्लू बेरी। वर्ब और नाउन को कंबाइन करके स्केयर करो, टच स्टोन, टच टच स्टोन। वर्ब और प्रेपोजिशन को कंबाइन करते हैं जब हम कंपाउंड नाउन बनता है टर्न प्लस ओवर, टर्न ओवर। नाउन प्लस को वर्ब करते हैं रेन प्लस ड्रॉप, रेन ड्रॉप। और भी बहुत सारी कॉम्बिनेशन देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन। यहाँ पर 3 कॉमन फॉर्म्स दिए हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन्स विद स्पेस बिटवीन वर्ड्स। कुछ कंपाउंड नाउन्स में 2 वर्ड्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, प्रिंटिंग पेपर। कंपाउंड नाउन जिनमें 2 वर्ड्स के बीच में हाइफन का यूज होता है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म, अराउंड। कंपाउंड नाउन्स जिनमें ना स्पेस होती है ना हाइफन होता है, फॉर एग्जांपल नोटबुक, फायरमैन। Sometimes the meaning of the compound noun is different from the meaning of separate words. कभी कभी कंपाउंड नाउन्स में दोनों जो वर्ड दिए होते हैं उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, बट जब उन्हें कंबाइन कर देते हैं तब मेन मीनिंग आ जाता है। हियर इट वी गो बाय द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ग्रीन। एग्जाम्पल में दिया ग्रीन प्लस हाउस। ग्रीन का मतलब हरा, हाउस मीन्स घर। तो यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन बनता है ग्रीन हाउस, जिसका मीन है वो घर जो ग्रीन पेंट किया हुआ हुआ है। तो ग्रीन हाउस का एक्चुअली मीन जो होता है वहां पर जहां पर हम पौधे उगाते हैं। नेक्स्ट एक नाउन्स की काइंड है पोसेसिव नाउन। A noun can show who or what owns has something, that particular noun in possessive form and it is called possessive noun. नाउन यहाँ पर हम उसका रिलेशन बताते हैं किसी चीज के साथ, वो पोसेसिव नाउन होता है। इसमें हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, में एस का इस्तेमाल करते हैं पोसेसिव नाउन को शो करने के लिए, चाहे वो सिंगल हो या प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल जॉन्स फोटोग्राफ, ब्रदर्स बुक, वाई प्रोजेक्ट। अब हम सीखेंगे पोसेसिव नाउन की फॉर्मेशन। सिंगुलर पोसेसिव नाउन इज सिंगुलर नाउन दैट शो ओनरशिप। सिंगुलर पोसेसिव नाउन जो है सिंगुलर नाउन के साथ शो किया जाता है ओनरशिप को। वी फॉर्म ए सिंगुलर पोसेसिव नाउन बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एंड एस। अगर हम सिंगुलर पोसेसिव नाउन शो करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी के साथ एस शो करते हैं। गर्ल सिंगुलर नाउन है, अपोस्ट्रोफी एंड एस। गर्ल्स ड्रेस, लेडीज पर्स, एंकल अंकल्स ऑफिस। बट प्लूरल पोसेसिव में क्या होता है, इसमें भी ओनरशिप शो होती है बट हम इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, हमें एक्स्ट्रा एस की जरूरत नहीं होती अगर वो एस एंड में प्लूरल में लगा है। ड्रेसेस कोस्ट, तो हमने अपोस्ट्रोफी यूज करी है क्योंकि ऑलरेडी नाउन प्लूरल नाउन के साथ एस लगा हुआ है। ड्रेसेस कोस्ट, बॉयज शूज। However, we add an apostrophe and s to those plural noun which don't end with s. कभी कभी कुछ प्लूरल पोसेसिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में वो प्लूरल होते हैं बट एंड में एस नहीं होता, तो हम उसमें पोसेसिव नाउन कन्वर्ट करते वक्त अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाते हैं। मेंस शर्ट, फिश फूड। वी एड ओनली अपोस्ट्रोफी टू कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन बिगन इन एन। कॉमन और प्रॉपर नाउन में भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं अगर
वो एस से एंड होते हैं। बस, विंडोज, बोज, होम्स, जोन्स, बुक, जीसस ब्लेसिंग, फैक्ट फाइल। वी यूज एन अपोस्ट्रोफी एंड एस ओनली फॉर पीपल एंड एनिमल। अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम सिर्फ एनिमल और पीपल के लिए करते हैं। ऑब्जेक्ट और प्लेसेस आईडीज के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द लेग्स ऑफ ए टेबल, द कैपिटल ऑफ इंडिया। Important points. A common noun is the name of person, place, an animal, or thing. A proper noun is the unique name given to particular person, place, animal, or thing. Proper noun always begin with a capital letter. A collective noun is the name given to a collection of common nouns. A material noun is the name given to a material substance or which things are made. An abstract noun is the name given to something we can feel, imagine, understand, but can't see and touch. The apostrophe used to show possession or belonging. I hope आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।